کیا میرے پاس چابیاں تھیں؟ اصل چابیاں، میں نے برہمی سے کہا۔ اصل نقل کا تو ہمیں پتہ نہیں جی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ گاڑی کو سٹارٹ کرنا ناممکن نہیں ہوتا۔ وہ بولا، ایک پلاس ہی تو چاہیے ہوتا ہے۔ جب چوکیدار نے مجھے وہ چابیاں لا کے دیں اور حلیہ بتایا تو میں سمجھ گیا کہ اپنے سکندر صاحب ہی ہوں گے۔ میں نے غصے کو ضبط کیا۔ مجرم دلاور تھا یا تافے اور گامے کی بات تھی، لیکن کتنی آسانی سے الزام میری ذات پر آ رہا تھا، صرف اس لیے کہ صبح جذباتی ہو کے میں نے ایک غلطی کی تھی اور نئے چوکیدار کو اپنے خلاف ایک گواہ بنا لیا تھا۔ میرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا چودھری دلاور، رضوی صاحب نے لہجہ بدل کے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ذرا غیر ذمہ دار قسم کے لڑکے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ کچھ باتیں وضاحت طلب رہ گئی تھیں جن کی آج وضاحت ہو گئی۔ آپ 1000 بار تشریف لائیں جی۔ دلاور نے مصافحہ کرنے کے بعد اٹھ کے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ ہم کوئی برا تھوڑی مانتے ہیں۔ وہ فارسی میں کچھ کہتے ہیں کہ جس کا حساب ٹھیک ہو وہ محاسبے سے نہیں ڈرتا، کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معافی۔ خدمت کا موقع تو دیا ہی نہیں آپ نے۔ وہ دروازے تک ہمارے ساتھ آیا۔ بے شک آپ رشوت نہیں لیتے، سارا زمانہ جانتا ہے، مگر چائے کی ایک پیالی تو رشوت میں شمار نہیں ہوتی۔ مہمان کے لیے اتنا تو سبھی کرتے ہیں۔ خیر آپ کی مرضی۔ اس نے محض اپنے اعتماد اور پرسکون لہجے سے بات بگڑنے نہیں دی تھی، اور یہ ایسی صلاحیت تھی جس کا اعتراف مجھے بھی کرنا پڑا۔ اتنی قوت برداشت کا مظاہرہ میرے لیے ناممکن تھا۔ دلاور کی جگہ میں ہوتا تو کسی ایس پی کو کمرے میں قدم نہ رکھنے دیتا۔ واپسی پر ضامن رضوی صاحب ذہنی طور پر غیر حاضر تھے اور میرا خیال ہے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ میری ذہنی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دلاور کے پاس آ کے میں نے خود کو صرف بے وقوف ثابت کیا ہے، اور دلاور نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ اس کا حصار کتنا مضبوط ہے۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ تم جذباتی ہو کے جارحانہ انداز اختیار کر لیتے ہو۔ رضوی صاحب نے اچانک کہا، تمہارے مقابلے میں دلاور دفاعی کھیل کھیلتا ہے۔ پہلی غلطی تم نے یہ کی تھی کہ خالی ہاتھ اور اکیلے فیکٹری میں جا گھسے تھے، اس کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اندر پہنچ کر تم نے اپنے مالکانہ اختیارات کو بروئے کار لانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ اختیارات قانونی طور پر تمہیں حاصل نہیں ہوئے اور اس کے لیے بہت غلط وقت کا انتخاب کیا۔ تم کسی اور وقت جاتے تو کچھ نہ ہوتا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا انکل، میں نے محسن کی طرف دیکھ کے کہا۔ اس وقت کوئی غلط کام ہو رہا تھا، ثبوت تو کوئی نہیں، لیکن فرض کر لو کہ منشیات کی ایک کھیپ برآمد کے لیے تیار تھی۔ ایسے وقت میں تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی تھی کہ تم معائنے کے بہانے تلاشی لو اور حقیقت جان جاؤ۔ چنانچہ تمہیں وہ ٹیم ملی جو دوسرا دھندا کرتی تھی۔ انہوں نے تمہیں راستے سے ہٹا دیا اور اپنا کام کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ خانہ تلاشی میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ چھاپے بہت سوچ سمجھ کے مارے جاتے ہیں۔ طویل عرصے تک نگرانی کے بعد، مخبروں سے تمام معلومات حاصل کر لینے کے بعد اور فرار کے تمام راستے بند کر دینے کے بعد، تمہارا اچانک جانا چھاپے سے کم نہیں تھا۔ اگر تم آج جاتے تو دلاور تمہیں ہر ورکشاپ میں لے جاتا اور تمہیں اجازت دیتا کہ جس طرح چاہو اپنا اطمینان کر لو، جو چاہو دیکھ لو۔ وہ ایک چال آگے کی سوچتا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ تمہاری تلاش کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ وہ اگر چاہتا تو نہ یہ بریف کیس چوکیدار کو ملتا اور نہ تمہارا پیغام، لیکن اس نے ہمارے لیے جال پھیلایا تھا۔ ہم آئے اور جھک مار کے چلے گئے۔ دلاور کا کیا نقصان ہوا؟ اس کی پوزیشن تو اور کلیئر ہو گئی کہ ایس پی صاحب نے دشمنوں کی رپورٹ پر چھاپا مارا لیکن ملا کچھ نہیں۔ آئندہ چھاپا مارنے کی اجازت لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری حماقت تم نے آج صبح کی۔ اگر تم اس ٹرک کو سڑک کے کنارے کسی جگہ بھی چھوڑ جاتے تو کیا حرج تھا؟ ٹرک بالآخر فیکٹری پہنچ جاتا، لیکن تم نے دلاور پر یہ جتلانے کی کوشش کی کہ تم کتنے بہادر اور عقل مند ہو۔ عقل مندی کے اس جام میں تم بھول گئے کہ یہ نیا چوکیدار تمہارے خلاف ایک چشمدید گواہ ہو گیا ہے۔ دلاور جیسے دشمن کا مقابلہ ٹھنڈے دماغ سے اور عقل سے نہیں کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ مجھے تو اب کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ہمیں کسی خفیہ ٹھکانے کا سراغ تک ملے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا پروگرام ختم کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اب مجھے سوچنا پڑے گا، انکل نے کہا۔ دلاور سے میں پہلی بار ملا ہوں اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ تم دونوں کے مقابلے میں بہت بھاری پڑتا ہے۔ تم اس کے سامنے طفل مکتب ہو۔ کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ منشیات سمگل کر رہے ہیں؟ محسن ہفت سے بولا۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی شہادت نہیں ملی۔
अंकल रिजवी ने कहा, ये कोई और चक्कर है। अच्छा, अब तुम लोगों का प्रोग्राम क्या है? मुझे तो पहले ही दफ्तर से देर हो गई है, आप हमें कहीं भी उतार दें। मैंने कहा, हम घर चले जाएंगे, मुझे तो सोना है। अंकल रिजवी ने जीप रोक ली। मेरा मशवरा मानो तो सोचे समझे बगैर कोई कदम मत उठाओ। मौका मिले तो मशवरा कर लो मुझसे या राबिया से, वरना किसी दिन ऐसे फंसोगे कि हम भी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकेंगे। साफ जाहिर था कि इनका मूड ऑफ था। आया कुछ अकल शरीफ में? मोहसिन ने जीप के जाते ही तन से कहा, हर काम अकल पर नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने कहा, कुछ जज्बाती फैसले नागुज़ेर होते हैं जब अकल साथ नहीं देती या इतनी मोहलत ही नहीं मिलती कि मशवरे से लाया अमल तैयार किया जाए। मसलन अब मैं सोच रहा हूँ कि मीर वजीर एंड कंपनी के ऑफिस का एक चक्कर लगा के साबिक उस्ताद पेड्रो को बहैसियत अहमद नवाज गर्देजी जनरल मैनेजर काम करते देखूं। क्या ख्याल है आपका? अगर आपने आज इसे ना देखा तो क्या आपका हाजमा खराब हो जाएगा? मोहसिन ने भिन्ना कर कहा, घर चल सीधी तरह। शेरवानी, मैंने कहा, दिलावर ने तेरी हिम्मत शिकस्ता करके बुज़दिल बना दिया है। इस वक्त चौधरी दिलावर बहुत खुश होगा कि इसने एसएसपी साहब को दूसरी शिकस्ते फाश दी। हालांकि मेरा ख्याल है कि अब इसकी खैर नहीं। रिजवी साहब ने इसको मान सबूत घेरने का तहैया कर लिया है। गोया रिजवी साहब भी शिकारी हो गए हैं। मोहसिन ने कहा, हमारी तरह। यही समझ ले। दिलावर ने फोन पर पेड्रो यानी अहमद नवाज गर्देजी को हंस हंस के हमारे आने और जाने का अहवाल सुनाया होगा, और गर्देजी को इस वक्त बिल्कुल तवक्को नहीं होगी कि हम अहले ईमान हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो अहमक है, नर्वस हो जाएगा। इसी ऑफिस में डिसिल्वा की और मेरी चपकलिश बल्कि जंग हो चुकी है। डिसिल्वा दुबाव में आ गया था। अपने उस्ताद पेड्रो की शान देखते हैं। कौवा हंस की चाल कैसे चल रहा है। एडवेंचर कोई नहीं होगा। मोहसिन ने कहा, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। हम एक रिक्शा में बैठ कर गए। जहाँ तक मूड का ताल्लुक है खान साहब, मैंने कहा, तो दिल इस वक्त मेरा भी चाहता है। क्या चाहता है ये आप समझ गए होंगे, मगर राबिया कोर्ट में होगी और ज़ाब्ता फौजदारी और दीवानी के चक्कर में सब भूल गई होगी। ज़ाब्ता इश्क की दफा 109 आवारागर्दी होती है। मोहसिन ने मुझे मुत्तला किया। ये जालिम समाज इश्क को आज भी आवारागर्दी ही समझता है, हालांकि आवारागर्दी इश्क के निसाब में शामिल है। मैंने कहा, मसलन हाना मजनू सहरागढ़ बेदरवाजा था। वो जंगलों में भटकते फिरते थे। चुनाचे मेरे तस्वुर में और कुछ जनाना रोमानी नावलों का सा मंजर है कि 14वीं की रात, लबे जोइबार और दामने कोहसार, सरो समन और मरगुजार, साथ वो जाने बहार। लेकिन हाजिर स्टॉक में क्या दस्तयाब है? दोपहर का वक्त, तारकोल की पक्की सड़क, जूतियां चटखाना, हीरो जेरे जमानत जेरे दफा 302 और हीरोइन नदार्ड। चुनाचे अब तस्वुर से ही गुजारा किया जा सकता है जैसे इस्लामाबाद में आपकी मुमकिना जोजा कर रही हैं। यार, तूने कुछ पूछा था इससे? मोहसिन ने नहायत बेशर्मी से दांत निकाल के पूछा। याद करती थी मुझे? मैंने अफसोस से सर हिलाया। मैं इस दिल शिकन, दिल आजार और दिल सोज मौजू से गुरेज चाहता था। मैंने कहा, इस बदबख्त के साथ जो कुछ बुजुर्गों ने किया, यानी जबरदस्ती से काम लेकर इसका मुस्तकबिल तबाह कर दिया, बस कुछ वो मजबूर थी इसलिए इस्तेहसाल का शिकार हुई, मगर अब वो एक इंतकामी रद्द-ए-अमल का शिकार है और दरोगे बरगर्दन रावी तेरे सिवा हर जवाने रानाओ खुबरू के साथ फरार पर कमर बस्ता है। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से इसके कमरे में वहीद, मुराद और नदीम की तस्वीरें देखी हैं, इलावा अंकल रिजवी एंड शेरवानी की तस्वीर के। अगर तूने बकवास बंद ना की तो मैं रिक्शे से कूद जाऊंगा या तुझे फेंक दूंगा। मोहसिन ने झल्ला के कहा, रिक्शा ड्राइवर को फेंक देने में ज्यादा फायदा है। मैंने कहा, लेकिन इसी वक्त रिक्शा रुक गया। मैं और मोहसिन सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे। खिलाफे तवक्को नीचे किसी ने हमारा रास्ता नहीं रोका। चौकीदार ऊपर खड़ा था, जहां बाईं तरफ का दरवाजा स्टाफ रूम में खुलता था और बाईं तरफ जनरल मैनेजर का कमरा था। किससे मिलना है आपको साहब? नए चौकीदार ने रस्मन कहा। वो पुराने चौकीदार से ज्यादा मुहज्जिब था। मिलना तो सबसे है, मैंने कहा, लेकिन तुम इजाजत किस किस की दोगे? हाकिम हो। हमारी क्या मिजाल साहब? वो समझा हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा मतलब है आपको अमले से काम है तो इधर जाएं। हमें डिसिल्वा साहब से मिलना है, मैंने सरसरी बेनियाजी से कहा। वो तो इनका इंतकाल हो चुका है साहब, इसने हमारी कमिलमी पर कहा। अच्छा, मैंने कहा, हम उस्ताद पेड्रो से मिलेंगे। कौन उस्ताद पेड्रो जनाब? इसने हैरान होके कहा।
हम इसका जवाब दिए बगैर जनरल मैनेजर के कमरे में दाखिल हो चुके थे। नक्शा मेरा देखा भाला था। पहले वही मुख्तसर कमरा आया जिसमें शहला बैठती थी। ये जगह न जाने क्यों अभी तक खाली थी। मैंने दरमियानी दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हुआ। मेरे कदम अचानक रुक गए। जो शख्स जनरल मैनेजर की जगह बैठा था वो उस्ताद पेड्रो नहीं था। वो 30-35 साल का स्मार्ट सा आदमी था, खिलते हुए रंग और अकहरे जिस्म वाला, जिसके साफ शेव किए हुए चेहरे पर हल्की हल्की और निफासत से तराशी हुई मूछें थीं। इसके घने स्याह बाल दरमियान से 2 हिस्से करके बनाए गए थे और इसने आंखों पर कीमती सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक लगा रखी थी। वो सूट में ऑफिस आया था, लेकिन कोट इसने हैंगर से लटका दिया था और अब बेदाग सफेद कमीज, सलेटी रंग की पतलून और आड़ी स्याह और सफेद पट्टियों वाली टाई में मलबूस था। चेहरे के नकूश की मुलायमत से वो तालीम याफ्ता और मुहज्जिब लगता था। यस प्लीज, वो हमें देखते ही उठा। तशरीफ लाइए। इसने मुझे और मोहसिन को बमुकाबिल के नशिस्त पर बैठने की दावत दी। वो दरअसल हमें मिस्टर अहमद नवाज गर्देजी से मिलना था, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा और गुफ्तगू अंग्रेजी में की। अहमद नवाज गर्देजी मैं ही हूँ। इसने बड़ी शाइस्तगी से अंग्रेजी में जवाब दिया। फरमाइए। अगर वो कहता कि मैं अलादीन के चिराग का जिन हूँ तब भी मैं और मोहसिन इतना ना चौंकते। हमने पहले एक दूसरे की तरफ और फिर गौर से इस दूसरे अहमद नवाज गर्देजी की तरफ देखा, जिसे हमारे रवैये ने थोड़ा सा हैरान कर दिया था। आपको यकीन है कि आप ही अहमद नवाज गर्देजी हैं? मोहसिन ने नहायत अहमकाना सवाल किया। नए जनरल मैनेजर। वो मुस्कुराया। मुझे तो यकीन है, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि एक अहमद नवाज गर्देजी से हम पहले भी मिल चुके हैं, मोहसिन ने कहा और खुद को मजीद हफ्त से बचाया। इसी जगह? मेरा मतलब है किसी ने अमदन आपको धोखा दिया था? वो बोला। जी, लेकिन इसे हमसे यहाँ नहीं मिलवाया गया था, मैंने कहा। हमारी मुलाकात बाहर हुई थी और इसके बारे में यही बताया गया था कि वो साबिक जनरल मैनेजर मिस्टर डिसिल्वा की जगह आया है। वो कुर्सी की पुश्त का सहारा लेकर मुझे गौर से देखने लगा। मिलवाने वाला कौन था और क्या मकसद था इसका? एक तो ये बात बहुत लंबी है, मैंने इसकी बात काट दी। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ ये हमारे बाहमी मुफाद में भी नहीं कि मिलवाने वाले का नाम और मकसद जाहिर किया जाए। एक ना एक दिन आपको मालूम हो ही जाएगा। ऑल राइट, वो किसी तरद्दुद के बगैर बोला। ये तो बताएंगे आपके वो शख्स कौन था? उस्ताद पेड्रो नाम की किसी शख्स को जानते हैं आप? मैंने कहा। उस्ताद पेड्रो? इसने हैरत से दोहराया। ये बड़ा अजीब सा नाम है, मैंने पहले कभी नहीं सुना। शेख मुख्तार और बेगम पारा की एक फिल्म थी, मोहसिन ने कहा। इसका यही नाम था, पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी। नाम जरूर सुना होगा आपने। आप लोग खुद कौन हैं? वो मशकूक लहजे में बोला। अभी तक आपने अपना तारुफ नहीं करवाया है और अपने आने का कोई मकसद भी बयान नहीं किया है। मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर आजम नहीं, सिकंदर बख्त, मैंने कहा। इन दिनों बख्त खराब है, लेकिन सिकंदर अभी तक ठीक है। मेरे साथ मेरा दोस्त है मिस्टर शेरवानी उर्फ मोहसिन हसन खान। हमारे आने का मकसद सिर्फ आपसे मुलाकात करना था, लेकिन मैं तो आप हजरात को जानता तक नहीं, हैरतज़दा गर्देजी ने कहा। वैसे फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप हमारे लिए चाय या कॉफी मंगवा सकते हैं। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और एक इसे पेश की, जो भी मिल जाए। थैंक्स। इसने सिगरेट की पेशकश को मुस्तरद करते हुए रखाई से जवाब दिया। मेरा ख्याल है आप गलत जगह आ गए हैं, रेस्टोरेंट नीचे है, ये ऑफिस है मीर वजीर एंड कंपनी का। मुझे मालूम है। मैंने इत्मीनान से सिगरेट जला के लाइटर और पैकेट मोहसिन को पकड़ा दिए। इसके बानी और एक साबिक मालिक वजीर खान मेरे वालिद थे। इनकी वफात के वक्त मैं इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर रहा था। अब मैं इनका वाहिद वारिस हूँ। मैंने हक़ विरासत के लिए केस फाइल कर रखा है, चुनाचे आप मुझे निस फर्म का मालिक समझ सकते हैं। मीर शराफत अली के बाद मैं और दिलावर ही रह गए हैं। अब इसके हैरान होने की बारी थी। आई सी, इसने इब्तदाई सदमे से संभलने के बाद खुशगवार लहजे में कहा और दोबारा मुझसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आपने बहुत देर में बताया। बहरहाल आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे बचपन के दोस्त और क्लास फेलो मिस्टर मोहसिन के वालिद वजारत हार्जा में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, मैंने हाथ मिला के कहा। इसने फौरन मोहसिन से भी मुसाफा किया और तकरीबन वही अल्फाज कहे जो मुझसे कहे थे। फिर इसने कॉफी का ऑर्डर दिया। मिस्टर डिसिल्वा के पास एक सेक्रेटरी थी, मैंने कहा। आपने अभी तक किसी का तकर्रुर नहीं किया। प्रॉब्लम यह है मिस्टर सिकंदर, वो सोचते हुए बोला, कि तकर्रुर करेंगे मिस्टर चौधरी, उन्होंने वादा किया था। मेरा ख्याल है कि ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने कहा, और बेहतर होगा कि आप कर लें, मैं दिलावर से बात कर लूंगा।
थैंक यू मिस्टर सिकंदर, वो शुक्रगुजार लहजे में बोला। मैं यही चाहता था। यूसी काम मेरा है, मुझे कैसे करना है और कैसे लेना है ये मेरी प्रॉब्लम है। अब मिस्टर चौधरी मालिक हैं और मुझे इसमें भी शुबा नहीं कि मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि मेरी और उनकी पसंद नापसंद में मुताबिकत हो जिसे वो सेक्रेटरी मुंतहिब करके भेजते। अगर वो मेरे मिजाज और तरीक़ेकार को ना समझ पाई तो इससे कारकर्दगी यकीनन मुतासिर होती। इसलिए मैंने आपको इख्तियार दिया है कि अपनी सेक्रेटरी का इंतखाब खुद करें। मैंने कहा, अखबार में इश्तिहार दे दें, जो इंटरव्यू के लिए आए उनमें से देख लें और तनख्वाह भी खुद ही सलाहियत और तजुर्बे की बिना पर तय कर लें। गर्देजी का चेहरा मुसरत से चमकने लगा। एक चपरासी कॉफी की ट्रे अंदर रख गया था। वो हमारे लिए कॉफी बनाने लगा। मुझे ये शख्स पसंद आया था। अगरचे मुझे इसके बारे में मुफस्सिल मालूमात हासिल नहीं थी, लेकिन मुझे कोई शुबा नहीं था कि वो जनरल मैनेजर के ओहदे के लिए हर लिहाज से मौजू है। ड्रामा मेरे साथ चौधरी दिलावर ने किया था। इसने 6 अदद बदमाश जो इसके नाजायज कारोबार को चलाते थे मीर वजीर एंड कंपनी का फोरमैन बना के पेश कर दिए थे और फिर मुझे इनके हवाले कर दिया था कि मुझे सराते मुस्तकीम दिखाएं। सुबह मुझे रिजवी साहब की मौजूदगी में सख्त हफ्त उठानी पड़ी थी जब असल फोरमैन शनाख्त के लिए सफ़े बस्ता किए गए थे। दूसरा चक्कर दिलावर ने मुझे जनरल मैनेजर के लिए दिया था। इसने असल कारोबार के लिए सही आदमी का तकर्रुर किया था, मगर मेरे सामने उस्ताद पेड्रो को अहमद नवाज गर्देजी बना के खड़ा कर दिया था, सिर्फ मेरा रद्द अमल देखने के लिए और लुत्फ लेने के लिए, मुझ पर वाज़िया करने के लिए कि वो मुझे अहमक समझता है और बेवकूफ़ बना सकता है। बाद में किसी मौके पर मैं हंगामा बर्पा करता कि ये फ्रॉड है और सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, तो बड़े इत्मीनान से असल अहमद नवाज गर्देजी को सामने ले आता और कहता, आप भी कमाल की बातें करते हैं अपने सिकंदर साहब, मजाक का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। पूछ ले इनसे, ये नए जनरल मैनेजर हैं, क्या इनका नाम भी उस्ताद पेड्रो था या है? और मैं मजीद बेवकूफ़ बनता। आपने अपने मुतल्लिक नहीं बताया। इसने कॉफी लेकर कहा, पहले आप कहाँ थे? मैं बटाला इंजीनियरिंग में था। गर्देजी ने कहा, मैंने लालपुर की ज़रई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बैको में सेल साइट पर था। मिस्टर चौधरी ने बहुत अच्छी ऑफर दी तो मैं इधर आ गया। आपको यकीनन काम समझने और चलाने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैंने कहा, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होंगे जिनसे खुद को अलग थलग रख के आप कामयाब रहेंगे। मसलन, वो सोचते हुए बोला, वो क्या मसाइल होंगे मिस्टर सिकंदर? मैं आपको तारीकी में नहीं रखना चाहता। मैंने कहा, मेरे और दिलावर के दरमियान कुछ ज़ाती इख्तलाफात हैं। कानूनी तौर पर हम दोनों बराबर के मालिक जरूर हैं, बज़ाहिर तपाक से मिलते हैं और किसी पर कुछ जाहिर नहीं होने देते, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो सब जानते हैं और आपको भी मालूम होनी चाहिए। एक तो ये कि मुझ पर मीर शराफत अली के कत्ल का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम बेबुनियाद है और इसका मकसद मुझे कारोबार से अलग करना है। मेरी बेगुनाही या सज़ा का फैसला तो अदालत ही करेगी। दिलावर पूरे कारोबार का मालिक बनना चाहता था, मगर अभी तक इसे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई। चुनाचे तफसीलात में जाए बगैर मैं कहूँगा कि वो मेरा दुश्मन है तो ये गलत नहीं होगा। अहमद नवाज गर्देजी के लिए ये इंकशाफात नाकाबिले यकीन थे, चुनाचे वो भोंच का बैठा था। शायद इसीलिए आपने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं सेक्रेटरी का तकर्रुर खुद कर लूँ। वो परेशान होके बोला, मिस्टर चौधरी इन अहकामात को मनसूख कर देंगे। ओह नो, मैंने कहा और टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। मैंने बताया ना कि हमारे ज़ाहिरी ताल्लुकात अच्छे हैं। मैंने चौधरी दिलावर का नंबर डायल करना शुरू किया। इस फोन की एक्सटेंशन सेक्रेटरी के कमरे में है, आप हमारी गुफ्तगू सुन लें। गर्वेजी उठ के दूसरे कमरे में गया। चौधरी साहब, मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम, सिकंदर बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अपने सिकंदर साहब, चौधरी ने अपने मखसूस लहजे में कहा। खैर है ना जी? हाँ, मैं यहाँ ऑफिस में गर्देजी साहब के पास बैठा था। मैंने कहा, इनके पास कोई सेक्रेटरी नहीं अभी तक। मैंने कह दिया है कि अखबार में इश्तिहार देकर रख लें और सैलरी भी खुद तय कर लें, जो भी मुनासिब हो। ये अच्छा किया जी आपने, चौधरी दिलावर ने बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए कहा। मेरा दर्द सर नहीं रहा, वैसे ही वक्त नहीं मिलता, कुछ याद भी नहीं रहता। बस यही बताना था आपको। खुदा हाफिज। मैंने रिसीवर रख दिया। बताना तो मुझे ये था कि मैं असल गर्देजी से मिल चुका हूँ और किसी बात पर बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। गर्देजी जब वापस आया तो ज्यादा मुतमईन था।